हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं एंड घर पे ही हैं। काफ़ी सारे शहरों में लॉकडाउन है, सैटरडे संडेज एंड दिल्ली महाराष्ट्र वगैरह में फुल अभी लॉकडाउन है नेक्स्ट वीक तक। सो घर पे ही रहिए, मास्क पहनिए, अगर ज़रूरत है ग्रॉसरी शॉप या वेजिटेबल शॉप्स वगैरह जाने के लिए तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, सो लेट्स बी टुगेदर एंड फाइट दिस वायरस। डेफिनेटली हम लोग एक साथ अगर इस वायरस के साथ लड़ेंगे तो शायद जल्दी चली जाएगी। सो या, आई एम बैक with my video, the third and the last segment of my pregnancy series. So वीडियोस जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सो बिकॉज आई हैव बीन लाइक रियली थ्रू हार्ड टाइम्स ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। वैसे मेरी प्रेगनेंसी जो थी, द 9 months ऑफ माई प्रेगनेंसी इतनी टफ नहीं थी। द ओनली थिंग वॉज कि मेरा थोड़ा ऑक्सीजन कम हो जाता था, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था, वो इतना स्ट्रेसफुल मेरे लिए नहीं था। द postpartum pregnancy was really tough for me because after my baby was born and I had a C-section. So when I went to the hospital to open up my stitches did rupture. So जैसे stitches rupture हो गए तो मुझे और 20-25 दिन मतलब दे हैड टू हर 2 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था फॉर ड्रेसिंग ऑफ माई स्टिच, बिकॉज जब तक वो पूरी तरह से सूखता नहीं तो वो लोग स्टिच दोबारा नहीं कर पाते। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। So at least I guess my son was born on the 3rd of March, and after that I went to open up my stitches I think around 12 or 13. तो मेरे स्टिचेस उसके बाद रप्चर हो गए एंड देन आफ्टर आई हैड माई नेक्स्ट सर्जरी ऑन द 26th or 27th of March, which was like a month for me. I had that pain, that trauma for a month after the birth of my son. I did not exactly have a postpartum depression because not a lot of it, because I was with my mother and father and my husband used to visit me very frequently, but I did have postpartum depression, and postpartum depression is very stressful, very painful, because then you cannot bond with your child. You will always think that am I a good mother or not. That's the first and the foremost question that comes to your mind जब आपको postpartum depression होता है। हमेशा आपको लगता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं। So for a month I was very detached with from my baby because I had so much of pain in my own body. तो मैं उसको गोद में नहीं पकड़ पाती थी बहुत देर तक। I used to always lay down because मेरे stitches खुले थे and सिर्फ ड्रेसिंग पे ही थे। So there was a lot of difficulty to bond with my child, but the time went on and my son is 2 now. He is 2 years old, and I have been told by a lot of people that I am a good mother. My mother says that I am a good mother, so that's the biggest compliment that I can get from anybody, because she has been a wonderful mother, and when she says that I am a good mother, I think that's my prize. I won. So yeah, it's just the starting, I know, and there is a long way. He'll go to school, then he'll grow up, then changes will happen. I have to teach him a lot of things about everything. So yeah, it's just happening, it's just starting, and yes, my husband supports me a lot in this, and everything is like he does half and I does half. It's not that I am the mother and I have to do it. May it be the household work or taking care of Naksh, my son. Both of us are equal in it, and he supports really a lot, because whenever I'm ill or something, he completely takes over the charge to take care of Naksh. So it's really wonderful. Now I'm starting to enjoy. I make little things for him. He plays with me, so it's although very nice.
So it's had been a good 2 years now, and 3 years, मतलब pregnancy के साथ 3 years, the 9 months and after that. So it was not bad. I just pray to God that I remain like this and I don't give up at any point of time. So yeah, so आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रेगनेंसी, द मिथ्स, द एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन पार्ट, द मेंटल हेल्थ पार्ट. आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत बेसिक सी चीज़ है. जब हम लोग लेबर के लिए या सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको अपने साथ ज़रूरी है लेके जाना. द एसेंशियल्स दैट वी शुड टेक विथ अस व्हेन वी आर गोइंग फॉर आवर चाइल्ड बर्थ, may it be labor or C-section. So the first and the foremost thing is your medical documents, your file, the hospital file. All of your ultrasounds, all of your medicine prescriptions, all of your reports, everything. आपको हर एक चीज़ एक फाइल में आपके बैग में डालना ही डालना है. That's the first thing that you should carry. बिकॉज अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, आपके ब्लड प्रेशर्स देखना पड़ता है, आपके अल्ट्रासाउंड, द लास्ट अल्ट्रासाउंड दैट यू हैड वो देखना पड़ता है कि आपका बेबी कैसे पोजीशन में है, क्या है. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी विथ यू. द सेकेंड थिंग इज योर इंश्योरेंस पेपर. बहुत टाइम हम लोग इंश्योरेंस करते हैं या हमारे स्पाउस के मेडिकल क्लेम्स होते हैं, मेडिकल वगैरह. सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको लेके जाना चाहिए, द इंश्योरेंस पेपर. एंड द थर्ड इज़ योर IDs. द हॉस्पिटल्स ऑलवेज कीप द ID ऑफ अ मदर एंड द फादर फॉर देयर सेफ्टी पर्पस. तो आपको ID कार्ड्स अपने लेके जाने चाहिए. द सेकेंड थिंग इज़ योर ड्रेसिंग गाउन. अगर आप 1 या 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमेशा कंफर्टेबल मैक्सी गाउन्स आपको लेके जाना चाहिए, जिसमें इलास्टिक्स ना हो. बिकॉज अगर आप टाइट या इलास्टिक वाले कपड़े पहनते हैं या कुछ बॉडी हगिंग कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. यू टेक T-shirt एंड लोअर्स, द ट्रैक पैंट्स, और यू टेक ड्रेसिंग गाउन्स लाइक द मैक्सीज, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल. एंड लेबर में है, पेन में है, या अभी C-section के लिए भी 1 दिन पहले एडमिट होना पड़ता है फॉर द नेसेसरी वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग. आपको हमेशा एक ड्रेसिंग गाउन लेके जाना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज स्लीपर्स और योर फ्लिप फ्लॉप्स. बाथरूम वहाँ पे जो स्लीपर्स देते हैं आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आपके साइज़ के हों ना हो, व्हाटएवर. तो आपको अपने स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स लेके जाने चाहिए फॉर बाथरूम, फॉर रोमिंग अराउंड. पेन में आप एक जगह बैठ नहीं पाते व्हेन यू आर इन लेबर, आपको घूमना चाहिए या घूमना अच्छा लगेगा, तो यू शुड ऑलवेज कैरी योर ओन फ्लिप फ्लॉप्स. या स्किन एसेंशियल्स. AC में मोस्टली हॉस्पिटल्स में AC में आपको रखते हैं बिफोर द डिलीवरी, तो स्किन ड्राई हो जाता है, लिप्स चैप्ड हो जाते हैं. तो एक बॉडी लोशन एंड एक चैपस्टिक, लिप बाम आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर ड्राई लिप्स हो जाएंगे तो दैट इज़ अनदर इरिटेशन दैट विल मेक योर माइंड मोर स्ट्रेसफुल. सो ड्राई स्किन ना हो या चैप लिप ना हो, आपको ये 2 चीज़ स्किन के रिलेटेड आपको अपने पास रखने चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज कंफर्टेबल पिलो. एक कंफर्टेबल पिलो आपको अपने बैग में डाल देना चाहिए, अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स पिलोज आर रियली अनकंफर्टेबल. आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उस समय लेनी चाहिए जो आपको और ज़्यादा अनकंफर्टेबल करे. तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू टेक योर ओन पिलो जो कि आपको कंफर्टेबली सोने में हेल्प करे. यू कैन कैरी सम बुक्स एंड सम मैगजीन्स, क्योंकि इतना टाइम आजकल तो फ़ोन पे लोग रहते हैं, बट इफ़ यू लाइक टू रीड बुक्स और सम मैगजीन्स या आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप अपने लिए वो सब कैरी करें. बुक्स कैरी करें, मैगजीन्स कैरी करें, ईयरफोन्स कैरी करें टू लिसन टू म्यूज़िक एंड टू सूद डाउन योर सेल्फ, टू काम डाउन योर सेल्फ, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. After your delivery, you will also need to change dresses. So after normal delivery आपको 1 या 2 दिन maximum रहना पड़ता है हॉस्पिटल में according to your complications and everything. And after C-sections it takes
अप टू 5 days, 3 to 5 days. उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 3 to 4 पीसेस ऑफ क्लोथिंग आपको कैरी करना चाहिए. बेसिक क्लोथिंग, नाइट गाउन्स या फिर कंफर्टेबल ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट्स, इस टाइप की क्लोथिंग आपको कैरी करना चाहिए एक्स्ट्रा 2 या 3 पेयर या 4 पेयर मोस्टली, क्योंकि आपको उतने दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा. द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड ऑलवेज कैरी योर heavy absorbent maternity pads. Heavy absorbent maternity pads, that's a mouthful, गड़बड़ हो गया. So yeah, sanitary napkins जो कि heavy absorbent है, उसको आपको कैरी करना चाहिए, because after the delivery you tend to bleed a lot and it may last up to a long period of time. So you should always carry that with you because it's very necessary. You should carry comfortable underpants, because if you have a C-section and you have a stitch, it is very uncomfortable to wear underpants. So you should carry very comfortable, very high up to your navel utna tak underpants carry karna chahiye, the high waisted underpants which are easy and comfortable, and you will not feel any irritation or any distress in it. The next thing is you should always carry some toiletries like wet tissues, dry tissues, towels, your toothbrush, toothpaste, आपका साबुन, hand wash, sanitizers, ये सब आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए, because you never know how long you are going to stay in the hospital. So अपनी चीज़ें, wet tissues ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा stressful होता है the period when you are going into your लेबर और यू आर गोइंग फॉर योर सी सेक्शन, बहुत स्ट्रेसफुल होता है. सो टू सूद योर सेल्फ डाउन आप थोड़ा डैब कर ले वेट टिश्यूज से. कुछ खा रहे हैं, गिर गया, या हाथ पोंछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये सारी जो टॉयलेटरीज हैं आपको हमेशा आपके साथ कैरी करना चाहिए. आई लिस्ट डाउन एवरीथिंग, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगी. सो यू कैन मेक अ चेक लिस्ट आउट ऑफ इट एंड यू कैन जस्ट टिक इट ऑफ वाइल टेकिंग. द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड टेक सम इंटीमेट केयर क्रीम और ऑयल. आपका चाइल्ड बर्थ के बाद यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट पार्ट्स. तो इंटीमेट केयर क्रीम या वॉश या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं आपको लेना चाहिए, सो दैट यू डू नॉट हैव UTI और एनी अदर फंगल इन्फेक्शंस आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ. यू शुड ऑल्सो कैरी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स एंड ऑयल्स. बहुत सारे लोगों का स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि यू पुट स्ट्रेच मार्क ऑयल और क्रीम आपके टमी पे 7 मंथ से ही शुरू कर दें, जब आपका पेट थोड़ा बढ़े, सो दैट आपके ज़्यादा स्ट्रेच मार्क नहीं पड़े. इट रियली हेल्प मी, बिकॉज मेरे पेट में बड़े स्ट्रेच मार्क्स है, बिकॉज आई यूज टू इच इट, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, बिकॉज आई हैड बीन यूजिंग द बायो ऑयल. आई लिंक डाउन इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट हैज़ हेल्प मी really well. You can please try it out. It's not a sponsored video. I'm just giving my own thoughts and own एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रही हूँ. तो स्ट्रेच मार्क क्रीम और ऑयल आपको लेना चाहिए आपके साथ. उसके अलावा कुछ कैंडीज, स्नैक्स, माउथ फ्रेशनर, कुछ जूसेस, कुछ नमकीन, ये सब भी आपको कैरी करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इन योर लेबर एंड यू आर हंग्री, रात को आपको भूख लगा अचानक, तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने का चीज़ ज़रूर होना चाहिए, या एटलीस्ट पीने का चीज़ ज़रूर होना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ सिप ऑफ योर जूस एंड यू कैन फील अ लिटिल बेटर. So this is everything that you should carry for yourself in your hospital bag. So there should be another bag which is for your baby. When you deliver a baby, आपके बेबी के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें कैरी करनी चाहिए, क्योंकि फिर अचानक से आप कहाँ जाएंगे घूमते फिरेंगे लेने. तो आपको अपने बेबी के लिए भी एक छोटा सा बैग रखना चाहिए, जिनमें डाइपर्स, उसके कपड़े छोटे मोटे, सॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्क्यूटो रेपेलेंट्स, ऑयल क्लॉथ, एक छोटा सा ब्लैंकेट, सम वेट एंड ड्राई टिश्यूज एंड सम क्रीम्स. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बेबी के लिए भी कैरी करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न यू जस्ट हैव टू
keep it like you are keeping a dew drop on the lotus leaf. So इतना careful होना चाहिए अपने बच्चे के लिए. So there mosquito is a problem in India or anywhere. Mosquito is a problem. कहीं कुछ कीड़ा काट ले या मॉस्किटो काट ले, आपको हमेशा मॉस्किटो रिपेलेंट रखना चाहिए. कुछ क्रीम रखना चाहिए, रैश क्रीम, अगर कुछ रैश हो गया, या सैनिटाइज़र रखना चाहिए आपको उसके लिए. जो भी आए उसको देखने या उसको पकड़ने, तो आपको थोड़ा सा सैनिटाइज़र. इट्स नथिंग रॉन्ग. हमको लगता है, वी फील एज ह्यूमन बीइंग कि कहीं उस सामने वाले इंसान को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसको कहूँगी कि सैनिटाइज़र यूज़ कर लीजिए बच्चे को छूने से पहले. It is very important for your own baby. It is very important because babies, newborns are very, very easily infected, easily rashed, or easily get down with any kind of germs or anything. सो आपको हमेशा उनको बोलना चाहिए कि थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज़ कर लीजिए, उसके बाद मेरे बच्चे को पकड़ सकते हैं आप. इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट और यू शुड नॉट फील कॉन्शियस अबाउट इट. So these are the few things that you should carry for yourself and your baby while you are in your labor or while you are going to the hospital for your delivery. So I'll list everything on the screen somewhere. You can make a checklist if you want. If you feel it is useful and you can take care. So एक या दो चीज़ें मैं आपको उसके अलावा बताना चाहूँगी अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट अ मिथ. It happens to everybody. It has been happening to everybody. पुराने ज़माने में जैसे हमारे मम्मी हैं या आंट्स हैं, उन लोग बोलते हैं, my mother also told, there is nothing like postpartum depression. There is a thing like postpartum depression and it is there. क्योंकि it's just not a technical term or a medical term or a psychological term. It is there. Postpartum depression सबको होता है. पुराने टाइम में क्या होता था, फॉर आवर मदर्स एंड ऑल, दे मोस्टली स्टेड इन जॉइंट फैमिलीज और दे स्टेड विद देयर पेरेंट्स हु आल्सो हैड जॉइंट फैमिलीज. तो वहाँ क्या होता था, इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू जस्ट टेक दैट डिप्रेशन थिंग आउट ऑफ द माइंड बिकॉज आपकी डिलीवरी हो गई, आपके सब हो गया, आप घर आ गए, यू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली. हाउस होल्ड चोर्स करना, बच्चे का ख्याल रखना या कुछ भी, आप लग जाते थे उस पर. तो आपको ये समझ भी नहीं आता था कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है. सो योर अटेंशन और योर माइंड डाइवर्टेड इनटू अनदर थिंग. तो उनको लगता था ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डिप्रेशन नहीं है. बट दे ऑल्सो यूज टू गेट सैड. They also used to get angry on their kid. They also used to get really worked up because of the work and the taking care part of the child. So everything, depression सबको होता है. अभी ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि we stay in a nuclear family. Even if we are with our parents during the childbirth, वहाँ पे भी your mother or your father or your sister is there to take care of you. You don't need to do any work. They tell you to please sit down. So वो जो चीज़ है वो आपके दिमाग में आ जाता है. जैसे कि मैंने कहा, I did not bond with my kid for the first month of the baby क्योंकि I was ill myself. I was not well. I was not keeping well for myself. So that really made me really stressful and really depressed because I did not bond with my child. I always used to feel that I'm a bad mother. So postpartum depression is a thing. It will take at least an hour or two to discuss about postpartum depression. But I'm not an expert. I'm telling it out of my own experience. जो मैंने किया, जो मैंने पढ़ा, जो सर्वेज में आता है. इन एन अमेरिकन मैगजीन देयर वाज अ सर्वे व्हिच सेड दैट आउट ऑफ एवरी 10 women, 10 mothers, there are 3 who are suffering from postpartum. सो इट्स अ बिग नंबर. 10 में से अगर 3 है तो आप सोच लीजिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक चीज़, डेफिनेटली इट्स अ थिंग and it's a problem. So the next thing that I want to discuss are little things that you can do to avoid postpartum depression or to cope up with postpartum depression. Not take it to your head a lot. जो मैंने किया था during the
pregnancy, during the postpartum depression phase. द पहला चीज़ ये है, आप अपने पेरेंट्स, आप अपने सिस्टर, अपने फ्रेंड्स, अपने बेटर हाफ योर हस्बैंड, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए. गो अराउंड टू टेक अ वॉक, एक्सरसाइज, मतलब आप उनके साथ मिलके एक्सरसाइज कर, ब्रिंग योर सिस्टर अलॉन्ग विथ यू एंड ट्राई टू डू लिटिल एक्सरसाइज. योगा करिए, प्राणायाम करिए, उसके अलावा वॉक्स करिए अपने मदर, फादर, सिस्टर, अपने हस्बैंड, जिसके साथ भी हो, वॉक पे जाइए. आराम से आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपने और अपने लव्ड वन के साथ, वो आपको बहुत हेल्प करता है. द नेक्स्ट थिंग इज, एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाइए. वॉट एवर यू फील लाइक ईटिंग, इट्स नॉट दैट कि आपको यही खाना है, लेकिन इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट और यू आर जस्ट ईटिंग प्रोटीन्स, नहीं. हर एक चीज़ खाइए, रोटियां खाइए, चावल खाइए, मिठाई खाइए, घी खाइए, बटर खाइए, वॉट एवर यू फील लाइक ईटिंग. Because if you are happy, like I can say about myself, I love food. As you can see, I just love food. Food is everything. Food is like music and food are the two things that I just can't do without. I used to eat everything. Just my mother is an amazing cook. She cooks like I have not known another person who cooks like that. बट शी कुक्स रियली वेल एंड शी गिव्स मी एवरीथिंग घर में बना के, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो पिज्ज़ाज हो, बर्गर्स हो, कुछ भी हो, वो जो मुझे खाना है वो घर में बना के देती थी. सो दैट मेड इट अ लॉट हेल्दियर, क्योंकि घर में आप हमेशा कम मसाला और तेल यूज़ करेंगे. तो eat a healthy diet and happy diet, whatever you want to eat. Don't just starve yourself or don't feel like, oh, I've got so much weight after my childbirth, मैं क्या करूँ. That's a big concern for women. अरे मैं तो ये लूज कैसे करना है. लूज हो जाता है, जिनका लूज होना होता है उनका हो जाता है. It's not a problem. It's not at all a problem. Big time heroines are, these actresses are losing weight like this. सो इट्स ईजी, नो प्रॉब्लम. आप खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, घर में बना के खाइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. द नेक्स्ट थिंग इज़, कुछ हॉबी परस्यू कीजिए, पेंटिंग्स कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक बनाइए, गाने लिखिए, स्टोरीज लिखिए, जो भी. अपने साथ वक्त बिताइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए. इट्स नॉट दैट यू हैव टू लुक, अपने बच्चे को देखते ही रहना है, नहीं. अपने लिए टाइम निकालिए, पैम्पर योर सेल्फ, गो टू अ सैलून, get a hair spa, get a foot massage, get a facial done, get your hair cut, do yourself, make time for yourself, make a routine for yourself. आपका बच्चा कब सोता है, कब जागता है, उसको कब खाना देना चाहिए, उससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा टाइम सोने के लिए. सो व्हेन यू रेस्ट, व्हेन यू टेक नैप्स, आधे घंटे का भी हो, आपको और ज़्यादा रिज्यूविनेटेड लगता है, अच्छा लगता है, और वो जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. सो द मेजर थिंग इज, डोंट स्ट्रेस अबाउट योर बॉडी, हाउ यू लुक, हाउ आर पीपल थिंकिंग अबाउट यू. लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. लोग क्या कहेंगे, लोगों से, लोग आपके बच्चे को आके नहीं संभालेंगे. जब आपको प्रॉब्लम होगा, आपको ही संभालना है. तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्ड, बॉन्ड विथ योर चाइल्ड, प्ले विथ हिम और प्ले विथ योर चाइल्ड. जस्ट टेक योर टाइम आउट एंड डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग. देखिएगा, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू कोप अप विथ योर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव्स में नहीं रहेगा. इट विल डेफिनेटली बी इन द पॉजिटिव सेंस. सो प्लीज फील फ्री, फील हैप्पी, and just bond with your child. Just be there for your child, be there for yourself, love yourself, and you'll see everything will fall into place. So yeah, thank you so much for listening to my
bug for so long for 3 videos, which are literally a little long videos, 20-25 minutes ka. But I feel really happy to have been sharing my experiences with all of you. It gives me really a kick that okay, if I can help anybody, मेरे बातों से किसी को अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है या हेल्प मिलता है तो I'll be really happy. So yeah, you all please take care of yourselves, stay at home. ज़रूरत पड़े तो ही बाहर जाइए, वरना मत जाइए. Take care of your children, take care of your family, take care of yourself, and I'll see you in the next video. So thank you so much. God bless you. Bye. Stay safe, stay happy.